to Matunga Study Circle for giving me this opportunity to interact with the members. Thanks to Rajendra sir, Jiten bhai, and RFG, who has been managing the entire show. I remember RFG last time also I forgot to say you thank you after the session. I recalled it. So you have been channelizing all the things for us. Thank you so much. Thank you. And with this, a very warm welcome and a big thank you to all the participants who have been regularly joining our series of this program. And this is the last session. This is the last one, sir, in the series? Yes, madam. In this bench series, in right? The first series. Then it will be a second series. Right, great. So very thankful to all of them. And sorry. Sir, वो approve कर दीजिएगा registration, please. आरिफ नया आया रहेगा उधर एक्सेप्ट कर लेना रजिस्ट्रेशन. हाँ किया. Done. Thank you so much, Arif ji. Now, friends, can I see a few messages in the chat box? Rajendra sir, no leg pulling at all. आप मेरी leg pulling मत करिए. चलिए. So, friends, can I see a few thumbs up? We are going to do a very interesting topic today, where we will be talking about the study material like Taxman also. We will be talking about the Netflix, Prime Videos, and so many things. So, आज सबका post lunch session, 5 o'clock, and that too on Saturday evening. So thumbs ups are taking really a lots of time, right, Ruchika ji? I can see that. Okay, great, Rajendra sir. So friends, let me start the webinar today. I hope you enjoyed last session, which was on litigation, which has always been my favorite topic. And today also we will be doing the e-commerce, which has lots and lots of example. And in our daily routine, we see all those things, but still we miss those things that acha ye tha, ye aise ho sakta tha, like that. So, right, Narayana ji, now we just start the point. Let me ask you, you all must have taken the subscription of Taxman or other so-and-so such sites. My question to you, they are providing you everything which is online, material and everything. Now my question comes whether these are e-commerce operators, yes or no. And आज तो yes or no सबको लिखना है. आज तो thumbs up देने में भी बहुत क्या थक गए हैं क्या? So can I see yes or no? Is Taxman, when they provide you the material, are they e-commerce operator? Don't hesitate in writing. We are here for learning. Some things you will teach me, some things I will teach you. So you all are writing no. Now the answers are flowing. Great. Okay, then what is that? You all said no. Then what is that? Okay, Netflix you watch, Prime Video you watch, a number of series you must have watched. Whether those are e-commerce operator? Yes or no? No. Okay. Rajendra ji saying no. Shreyans ji saying no. Jagdeep ji saying no. They are not e-commerce operator. Then what are those? Those are OIDAR. आज हम distinction पढ़ेंगे that what is OIDAR and what is these issues जो हम आज discuss करेंगे. We will be talking about all those things, right? So with this, first of all, I share my screen so that we can connect with each other. I think so the screen is visible. Sir, वो approve नहीं हुआ, वो work नहीं कर रहा, एक बार check कर लीजिएगा please. Otherwise, say her to connect from my mobile to RFG. So friends, can we, let me open the chat box too so that I can interact with you all. Right, Jigar ji, thank you so much. चलिए friends, so जब हम आज e-commerce operator की बात करेंगे ना, we will also be talking about OIDAR and we will be finding out the distinction. Now let me tell you, Netflix, Taxman subscription, Prime Video, Apple TV Plus, Disney Plus, these are not e-commerce operator. These fall under the category of OIDAR. है तो सब कुछ electronic, everything is electronic, but still it is OIDAR. When I say OIDAR, what is the main difference? Human intervention. For example,
If you want something from Amazon and the product comes from, say, the particular supplier sitting in Mumbai, Beauty Bazaar Mumbai, or something like that, in that case, you need that the person must be available, the product must be available, and there is a lots and lots of human intervention. But when I talk about Netflix, do you imagine the Deepika Padukone sitting on the another side of the TV and performing act for you? No, you don't. It is a recorded session with no or with minimal human intervention. When you watch some recorded videos, do you want the players of Indian cricket team Virat Kohli playing for you? No. So where there is a direct human intervention, the availability at other level is required. Now, like we are sitting on this platform together, it requires my availability, human intervention, because the live session is going on. This cannot be OIDAR. Some processes that are automatic, those are OIDAR. So Netflix, TV Plus, Max, Hulu, whatever you have, all these are the examples of OIDR service. Now, what is e-commerce operator? Friends, if I talk about e-commerce operator, none other than the charging section itself talks about certain points related to e-commerce operator. What it says. If I talk about what are the two sections of what are the two charging sections in GST? Jaldi, you really have to write quickly, because Jiten bhai told me to cover TDS also. So if we want to get the TDS covered, we have to really quick with the answers. What are the charging sections in GST? ये तो बहुत easy question, and I don't expect such learned audience to take so much time in writing. It is section 9 and section 5. Section 9 of CGST Act and section 5 of IGST Act are the two charging sections in GST in two various laws. So friends, अगर मैं charging section की बात करूं, 9192 ये बताते हैं किस rate पे as per value of section 15 tax लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, petroleum diesel 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं लगेगा, और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर नहीं लगेगा. देन आरसीएम के प्रोविजन 93 और 94 में कवर्ड है. As we proceed further, the provisions relating to e-commerce operator are covered in section 9 subsection 5. ओके, अब एक बात याद रखना, पूरे सेशन में आई विल बी टॉकिंग अबाउट 9(5) वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर, एंड व्हेन आई विल टॉक अबाउट 9(5) वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर, माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर रेफर टू एज द सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर ओनली. इसका मतलब जब हम 9(5) वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर पढ़ेंगे तो उसमें किस ऑपरेटर की बात की गई है? ओनली एंड ओनली the e-commerce operator जो services से related है. Can anybody tell me how many services are as of now listed under 9(5)? Just give me the number at least. 1, 2, 3, 5, 10. How many services are listed? Quick, I need the answers. Only and only 3 services are listed in 9(5). Only and only 3 services, right? Now, when we talk about this section 9 subsection 5, we have 2 provisos with us. Proviso 1 and provided further proviso number 2. Friends, proviso number 1 says, ई-कॉमर्स ऑपरेटर अगर तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो जो भी तुम्हें रिप्रेजेंट करता है वो लायबल हो जाएगा टैक्स पे करने के लिए. और इवन अगर तुम एक फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, यू डू नॉट हैव एनी फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो तुम्हें वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि आपके बिहाफ पे टैक्स पे करेगा. फ्रेंड्स, एक चीज बता दूं, दीज पीपल आर ऑन द रडार ऑफ द गवर्नमेंट नाउअडेज. May it be income tax, may it be GST, because there is lots and lots of tax evasion in this sector. And the tax evasion, the reason is that these operators are operating from outside India,
taking the data from India, providing the services to India, but they are not registered here and they are not paying the taxes. So government is getting catch hold of these persons. Can you give me any example? आजकल बहुत लोग freelancing का काम करते हैं, वो जैसे Upwork and others के साथ डील करते हैं. A number of freelancers are there nowadays doing the accounting work also in our line, but the e-commerce people, they are not registered in India for the purpose of providing, although they are providing the services in India, right? So 9(5) में पहली बार सर्विसेज की बात करी गई. फिर दो प्रोवाइजर्स ने कहा कि भाई तुम कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, अगर तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो तुम्हें यहाँ पे रजिस्टर तो होना ही पड़ेगा. यू मस्ट हैव वन रिप्रेजेंटेटिव हियर. चलिए अब आगे चलते हैं. ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्या डेफिनेशन दी हुई है जीएसटी में? Is there any definition given? Yes, it is given in GST. Even the term e-commerce is defined. Even the term e-commerce operator is defined. Both the terms are defined in GST. What it says, e-commerce operator means, so my dear friends, in both these definitions, you have the means definition, which is the conclusive, which is the exclusive definition. Means क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स तो ये है कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज या बोथ, या कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स. अब क्या एग्जांपल है डिजिटल प्रोडक्ट्स का? जैसे आजकल ई बुक्स आती है, स्वाइप फाइल्स आती है, ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क. इसका मतलब अगर आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज ओवर अ डिजिटल नेटवर्क प्रोवाइड करते हो, दैट इज ई कॉमर्स. तो उसका ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर वो पर्सन है जो उस फैसिलिटी को मैनेज और ऑपरेट करता है. नाउ फ्रॉम दिस डेफिनेशन माय क्वेश्चन अराइजेस. अब अगर मैं बात करूं, जितेन भाई ने अपनी एक साइट बनाई, ठीक है, उसके ऊपर अपनी सर्विसेज लिस्ट कराई कि भाई यहाँ तो ऑडिटिंग का काम भी है, इनकम टैक्स का काम भी है, एंड आई गॉट टू नो yesterday that he's a tally expert too. So these sort of all the types of services are provided here. My question, quick answer from all of you, whether Jiten bhai is also an e-commerce operator, yes or no? Because he is also providing the services over the digital or electronic media. Now tell me whether he is an e-commerce operator. So Rajendra ji is very right in saying no, he is not an e-commerce operator. Why? E-commerce operator, my dear friends, is the one who is managing the show for some other person, who owns or operates or manages the digital or electronic facility for some other person. अगर आप अपने products list करते हैं और उनको sell करेंगे तो आप एक e-commerce operator नहीं है. So अगर जितेन भाई की अपनी site भी बन गई, but still he is not an e-commerce operator. Now, e-commerce operator होते कितनी तरह के हैं? E-commerce operator are of, अगर मैं इनको ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो इनके मॉडल्स जो हैं, कुछ ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं जिनके बारे में हम पहले भी सुनते आए हैं, और अब कुछ न्यू मॉडल्स हैं. राइट नाउ कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, हमें लगता है हमारे पास तो कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है या हम डील नहीं कर रहे ई कॉमर्स के साथ, लेकिन आप सब डील करते हो उन पर्सन्स के साथ जो अपना काम थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कर रहे हैं. उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लिंक कराए हैं, उन्होंने अपने सर्विसेज लिंक कराई हुई हैं. सो ऑल दीज वी विल नॉट ओनली बी कवरिंग द ई कॉमर्स ऑपरेटर, वी विल ऑल्सो बी कवरिंग द पर्सन्स who are dealing with e-commerce operator, how they have to respond their transactions. Right now, अगर मैं मॉडल्स की बात करूं, what are traditional models? Normal, we divided into business, customer and government. B2B transaction. Now business to business, like Amazon business. If I talk about Amazon now Rajendra bhai thinks that okay, I want to have a laptop. So he wanted to go to the site of Amazon and wanted to purchase the laptop, but he wants the credit of that. He was trying to find out where he can put his GST number in order to get the credit of the laptop. He cannot do so in normal Amazon.
He cannot do so because that Amazon site is B2C site. And when you will ask them, they will say you, okay, you go to our Amazon business if you want to get your GST number over there. So this is B2B transaction. Second model, B2C, that you all know, normal Amazon, normal Flipkart. Then business to government. Now, these days we are uploading the tenders, we are responding to the tenders, we are sending our quotations, we are filing our applications. Those are B2G transactions. Now, likewise, consumer also comes to businessman. Reverse auction, what we call it as. Okay, business is not auctioning, the client is not going to have a particular thing, the customer has a particular thing, and you are going for the reverse auction, the business. C2C, OLX, eBay, one to another person, the transaction is happening. One person selling his car to another person through OLX model, C2C. Likewise, consumer to the government. Various consumer sites are there nowadays where we have various portals where we can go for the complaints and all, or we can sell the products. So that is C2G. If you want to sell these products to government, you want to apply for the tenders, you can go for C2G. Likewise, government to business, reciprocal, government to consumer, and government to government. When various public sector enterprises are talking to each other or selling products to each other. So these were the old models, traditional models. Now let me come to the new models, along with which we will be studying the e-commerce. फ्रेंड्स, अगर मैं न्यू मॉडल्स की बात करूं, सबसे पहले आता है मार्केट प्लेस मॉडल. ये किसका मॉडल है? Amazon और फ्लिपकार्ट का मॉडल है, राइट? Amazon और फ्लिपकार्ट के मॉडल में क्या होता है? मार्केट प्लेस. यू नो, Amazon is the largest retailer of the world without any inventory, without any stores. ये अपने पास कुछ नहीं रखता, नथिंग. अब कैसे काम चलता है? इनवॉइस सप्लायर का आता है, एंड Amazon से ना बहुत सारे प्रोडक्ट ब्यूटी बाजार मुंबई से आते हैं. क्या आपने वहां देखी है ये शॉप किसी ने, ब्यूटी बाजार मुंबई? चलिए, मेरे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहां से आते हैं, इसलिए मुझे याद हो गया है कि वहां से प्रोडक्ट्स आते हैं. नाउ देयर इज अ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म. 3 parties are there. Oh, great, Ruchika ji, you have shopped from there, right? So there is a customer and there is a supplier. 3 parties are involved: customer, e-commerce platform, and the supplier. E-commerce platform displays the products. अब रुचिका जी को भी नए नए कपड़े खरीदने थे, so she checked the products. She is the customer. Now there is a supplier. Let's suppose we take any brand, Lacoste or whatever, they are the suppliers. They have a particular showroom, Beauty Bazaar Mumbai, which is the supplier. Friends, invoice, देखो ऊपर stickers, ऊपर names चाहे Amazon के लिखे होते हैं, but the invoice that comes from the Beauty Bazaar of the supplier. Customer places the order. The goods are delivered by the supplier. Invoice is given by the supplier. Payment is collected by Amazon. And then that payment is given to the supplier after deducting its commission. इस पूरे मॉडल में ई-कॉमर्स ऑपरेटर Amazon और Flipkart अपने पास कोई इन्वेंट्री नहीं रखते. Nothing. The inventory is maintained by the supplier. Availability is given, made available by the supplier. Now, in this model, when we have 3 parties, government wanted to keep a check on the supplier, and that is why they introduced TCS. कि सुनो ई-कॉमर्स ऑपरेटर, तुम जब पेमेंट करने लगते हो सप्लायर को, तो तुम्हें टीसीएस काटना है. टीसीएस का रेट बताना जल्दी से लिखना जरा. It is 1%. 0.5 into 2. 0.5 into 2 is 1%. Now, TCS सप्लायर को काट के ई-कॉमर्स ऑपरेटर उसकी पेमेंट कर देता है, राइट?
Now, if we move forward to another model, which is the inventory model, this model, my dear friends, is not so popular in India because इसमें formalities बहुत ज़्यादा हैं, government की norms stringent है. As a result, ये जो हमारा इन्वेंट्री मॉडल है, ये हमें अलीबाबा ग्रुप में बहुत मिलता है, अलीबाबा चाइना. लेकिन अब इसमें क्या होता है, इन्वेंट्री जो है, ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना प्लेटफॉर्म बनाता है, अपनी इन्वेंट्री लेता है, अपने पास स्टॉकिंग करता है और आगे कस्टमर को देता है. कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हुई? ओनली टू. रीजन, अरे ब्यूटी बाजार से तो प्रोडक्ट किसने खरीद लिया? अलीबाबा चाइना ने खरीद लिया. नाउ अब ये कुछ वैसा नहीं हो गया जैसे जितेन भाई की साइट बनी थी. इट इज समथिंग लाइक दैट कि ठीक है, अपनी साइट बना रहे हो, तुमने परचेज कर लिया, तुम ही उसको सेल कर रहे हो. सो इट इज द प्रोविजन ऑफ नॉर्मल सप्लाई. इट इज अ नॉर्मल सप्लाई दैट विल बी टेकन अप. नॉर्मल कस्टमर जाता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर से गुड्स की डिलीवरी वो इंश्योर करता है, ऑर्डर प्लेस करता है. अरे इसमें इनवॉइस किसका आएगा? ऑफ कोर्स अलीबाबा चाइना का आएगा, प्रोडक्ट तो वो परचेज कर चुका है. But this type of model, आजकल Amazon has also started doing such sort of transaction. You know, when you go on Amazon site, वो अपने भी कुछ products link करते हैं जिसका Amazon के नाम से ही नाम है, like batteries. So batteries and there are other various product लिखा होता है Amazon brand. फ्लिप अपना ब्रांड है उनका. सो दिस टाइप, फिर वो एक रेगुलर ट्रांजैक्शन बन जाती है. अपनी साइट, अपना प्रोडक्ट, वही आप सेल कर रहे हो. यू आर नॉट अ मैनेजर ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर सम अदर पर्सन, राइट? सो इन्वेंट्री मॉडल में कोई टीसीएस का इश्यू नहीं आएगा. ये नॉर्मल सप्लाई है, पर्सन से परचेज करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर आगे सेल कर देगा. Now, if I come to the third model, hypermarket, it is also only a subset model. But मैंने इसको क्यों डाला है? कई बार ही हो जाता है कि ठीक है जी, एक हाइपर मार्केट मॉडल है, आपने तो ये बताया ही नहीं. सो मैं ये बता दूं, हाइपर मार्केट मॉडल कोई डिफरेंट मॉडल नहीं है. इट इज सेम एज योर द फर्स्ट मॉडल विच वी टॉक्ड अबाउट, मार्केट प्लेस मॉडल. बट इसमें क्या होता है, मार्केट ग्रास्प करने की कोशिश की जाती है. आपको कितना ज्यादा डिस्काउंट मिलता है ना प्रोडक्ट्स पे जब आप Amazon से परचेज करते हैं. So in this hypermarket model, what they do, they purchase the products at the higher cost and sells at lower cost at a loss. And they don't call it as a loss, they call it as an opportunity cost. वो बोलते हैं आज तो मार्केट ले लो, कल का कल देखेंगे. Amazon has successfully implemented this business model in order to eradicate what? Competition and to grasp the market share. So it's not a different model. It is just selling below the cost price and taking it as an opportunity cost, which को expenditure नहीं मानते, investment मानते हैं, right? The next model, the practically, so practically हम तीन मॉडल से deal for करेंगे. One is your marketplace model, inventory model and aggregator model. Friends, अगर मैं aggregator model की बात करूं, ये एक वो मॉडल है जैसे कि ओला उबेर. इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म मैनेज होता है. बट व्हाट इज द डिफरेंस? इट इज आल्सो लाइक मार्केटप्लेस मॉडल. मैंने गाड़ियां नहीं रखी हैं, गाड़ियां तो बिलोंग करती है एक्स ड्राइवर को, वाई कंपनी को, सी कंपनी को, बट ब्रांड नेम एग्रीगेटर का है. उसमें आपको पता लगता है प्रोडक्ट किसका आ रहा है, ब्यूटी बाजार का आ रहा है, नाइकी का आ रहा है, सोनी का आ रहा है. यहां नहीं है. यहां ब्रांड नेम ऑफ द एग्रीगेटर. कार ओला से आ रही है, उबेर से आ रही है, कार किसके नाम पे है, that is not an issue. The brand name of the aggregator is generally deal for, and this is mostly the underlying services are taken under this type of model is the aggregator model, right? So इसमें भी inventory maintain नहीं है. It is like marketplace model but under the brand name. एक मॉडल और है, that is M commerce model. अगर मैं फ्रेंड्स M commerce मॉडल की बात करूं, it is like your apps, mobile apps like wireless banking, wireless technology, mobile banking, like that,
right? Hypermarket model, it is indirect advertisement expense for attracting customers, right, Jitin bhai? It is actually what? It is actually the opportunity cost, the investment. Sir, Jio ने ये नहीं किया, जियो ने भी तो यही किया. स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करिए, अपने क्लाइंट्स को लो कॉस्ट दीजिए. अब तो सबके घर में ये नेटवर्क अवेलेबल है. Monopoly, he drove many companies out of the business. It affected a number of companies selling it. And you know, hotel industry में भी ऐसा काम बहुत चलता है. MMT, purchasing rooms at a higher price, selling it at lower prices in order to get the market. It is a sort of advertisement expenditure itself, but उसमें हमें दिखता है, अच्छा room तो 1000 पे purchase हुआ या 5000 पे purchase हुआ, selling at 4500. तो होटल्स में जनरली रूम्स अगर आप होटल से परचेज करते हो सो आपको कॉस्टिंग ज्यादा करती है, एंड व्हेन यू गेट इट ऑनलाइन बुकिंग सो इसमें ज्यादा पड़ती है. आज हम घूमने भी जाएंगे, खाने पीने भी जाएंगे, तो चलिए जल्दी से बता दीजिए वहां के लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है घूमने के लिए. जिस डेस्टिनेशन पे सबसे ज्यादा नाम आएंगे आज हम वहीं घूमने चलेंगे और वही चैनल देखेंगे आज. तो कम से कम डेस्टिनेशन के नाम तो लिख दो. जब मैं वहां आऊंगी तो कहां घुमाने लेके जाएंगे ये बता दीजिए. चलिए 95 और 55, 9555 हमने ये ओके राइट. जीतेन जी बोलते हैं चलो माटुंगा ही हमारा फेवरेट है. 95 एंड 55. अगर मैं 95 और 55 की बात करूं, देयर आर 2 चार्जिंग सेक्शंस. दोनों में बात हुई ई कॉमर्स ऑपरेटर की, हमने पहले ही कहा था. नाउ 95 के ई कॉमर्स ऑपरेटर में 3 सर्विसेज नोटिफाइड हैं. This section talks about only the services and not the supply of goods. पहली बात तो ये समझ लीजिए. अब वो 3 सर्विसेज कौन सी हैं? पहली एग्जाम्पल से बताती हूँ. ओला उबेर एग्रीगेटर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स. Second service is your hotel booking, lodging, boarding, lodging and hotel booking, hotel accommodation, all these accommodation services, yani MMT. Third type of service is your housekeeping service, example urban club. अब ये तीनों अलग क्यों है? बात ये थी कि देखिए अब एक प्लम्बर चाहिए, लाइक गिरीश जी बोलते हैं जी मुझे तो एक प्लम्बर चाहिए. अब प्लम्बर चाहिए, उन्होंने कहा कौन ढूंढने जाएगा, अर्बन क्लैब पे डालो आई नीड अ प्लम्बर फॉर दिस एंड दिस वर्क फॉर सो मेनी आवर्स, व्हाट इज द रेट एंड ऑल, एंड दे प्रोवाइड यू द प्लम्बर. Government said getting the taxes taken from the plumber, electrician, the drivers, it is very tough and it involves huge expenditure. Rather than collecting taxes from them, why not to get hold of urban clap और urban clap को deemed supplier बना दो. deemed supplier. अब देखो पार्टीज कितनी है. पार्टीज तो है ओला, ड्राइवर एंड गिरीश जी who is going to take the taxi services, right? The government says instead of collecting taxes from D1, D2, D3, D4 and so on, let's take Ola as the deemed supplier for GST. Actually, parties are 3. Driver is the provider, but still they want Ola to be the deemed supplier to provide services to the recipient, which is Girish ji. So Ola, you are a supplier also, and you are an e-commerce operator also. You are the deemed supplier. अब जब ड्राइवर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी एग्जिस्ट ही नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स, तो टीसीएस किसका काटोगे? टीसीएस किसका काटोगे? किसी का भी नहीं. सो जो हमारी सर्विसेज सेक्शन 9(5) में लिस्टेड है, अगेन मेंशनिंग ओनली सर्विसेज लिस्टेड इन 9(5) और 5(5) थ्रू नोटिफिकेशंस आई थी 17/17, 23/17 मैंने लिख दी है. सो ये नोटिफिकेशंस के थ्रू 3 सर्विसेज इसमें आई. 3 सर्विसेज में से
इन्होंने कह दिया कि हम ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही डीम्ड सप्लायर मानेंगे, सारे प्रोविजन उस पे लगेंगे, और ये जो ड्राइवर है इसको रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। और 95 और 55 के ऑपरेटर्स पर टीसीएस के प्रोविजंस नहीं लगते। पर्सन ही नहीं एग्जिस्ट करता फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, तो कैसे लगेंगे? नाउ फ्रेंड्स, हमने 3 सर्विसेज की बात तो कर ली। कौन कौन सी सर्विसेज? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, accommodation services and housekeeping services, और एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिए। बट नाउ सी द डिफरेंस इन द फर्स्ट केस, और सब में कौन लायबल है? ई कॉमर्स ऑपरेटर, तुम ही लायबल हो। ओके, इतना भी समझ आ गया। लेकिन understand the difference. In first one, the word written is any person. In the second and third one, the words are accompanied by these words. Except. What is the relevance of these words? Friends, passenger transportation by a radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle. प्रोवाइडर चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, हमेशा ओला, उबेर, ई कॉमर्स तुम ही डीम्ड सप्लायर हो। वो रजिस्टर हो चाहे ना हो, कोई कंपल्शन नहीं है। इस टाइप ऑफ सर्विस में हमेशा और हमेशा ई कॉमर्स ऑपरेटर ही लायबल है, ऑपरेटर ही डीम्ड सप्लायर है। ओके, बट बाकियों में, अरे दूसरी 2 सर्विसेज में ई कॉमर्स ऑपरेटर तभी लायबल है अगर हाउसकीपिंग का द हाउसकीपर और द होटल और द inn और द गेस्ट हाउस क्लब, दे आर बिलो द थ्रेशोल्ड। इसका मतलब एमएमटी तुम डीम्ड सप्लायर तभी बनोगे अगर होटल, जो जिस होटल का जो तुम्हारे साथ लिस्टेड है, अगर वो 20 लाख से नीचे होगा, तो जिम्मेदार ई कॉमर्स ऑपरेटर, डीम्ड सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर, नहीं तो होटल खुद। सो इट मींस 95 की सर्विसेज में वही होटल्स आएंगे विच आर बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट, वही हाउसकीपिंग पर्संस आएंगे विच आर बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट। जैसे अगर कोई प्लम्बर 20 लाख की लिमिट को एक्सीड कर जाता है, इन दैट केस उसको खुद रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर डीम्ड सप्लायर नहीं रहेगा। I hope the point is clear. Now we are on the master slide to understand the practical implications of GST in e-commerce portal. अब ये A लिमिटेड थी, इसने अपना ई कॉमर्स पोर्टल स्टार्ट किया। जब इसने अपना ई कॉमर्स पोर्टल स्टार्ट किया, पहला केस, फटाफट से आंसर देना। आई रियली वांट टू सी योर आंसर्स। जिगर भाई, भरत जी, सुरेश जी, वेयर आर यू ऑल टुडे? write the answers now. In this case, अगर ए लिमिटेड अपना पोर्टल बनाती है और अपने गुड सप्लाई करती है, तो क्या ये ई कॉमर्स है? The answer is no, this is not e-commerce, right Jigar ji, Hetal ji, good. So no question of TCS. एग्रीगेट लिमिट अरे वही मिलेगी, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। सर्विस नो सुरेश जी, सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो लिमिट है वो आज भी 20 लाख ही है। एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए लिमिट 40 लाख हुई है, बट क्योंकि मैंने यहाँ गुड्स भी लिखा था ना, इसलिए मैंने ऑब्लिक 40 भी लिखा है। ओके, चलिए नाउ अब ऐसा देखो, रुचिका मैडम को भी प्रोडक्ट बाय करने थे। अब रुचिका जी सोचती हैं ये प्रोडक्ट अच्छा है कि ये ब्रांड अच्छा है, ये चीज लूं कि वो चीज लूं। शी जस्ट पुट ऑन व्हाट आर द टॉप 5 ब्रांड्स फॉर हनी। I want to purchase a very good honey, organic honey without any sugar. So she thinks of, okay, which honey is the best honey? A site opens and gives her the information. This honey, wild honey is good. Multifloral honey is good. This brand is good. The site, which is just providing you the information, not selling any products, is not an e-commerce operator. जब कुछ बेच ही नहीं रहे
पैसा ही नहीं है तो टीसीएस का क्वेश्चन भी अराइज नहीं होता। चलिए अगले पे चलते हैं। सप्लाई अदर पर्सन्स गुड्स और सर्विसेज थ्रू ई-कॉमर्स पोर्टल। अब हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो अपने प्रोडक्ट्स ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचते हैं। फ्रेंड्स, स्विगी, Zomato. Now tell me one question I want to know from all of you. And my question is, if I say I have a restaurant which is registered with Swiggy, is it 9-5 services? Yes or no? क्या ये 9-5 का सर्विस ऑपरेटर है या नहीं? क्या ये 9 सबसेक्शन 5 या 5 सबसेक्शन 5 का ई कॉमर्स ऑपरेटर है या नहीं? सो रुचिका जी कहती है नहीं है। बाकी कहाँ है? योगेन जी नो, राजीव जी नो, जिगर जी नो, वेरी गुड। सुरेश जी एब्सोल्युटली करेक्ट, यू ऑल आर। नहीं है। क्यों? ना तो ये हाउसकीपिंग है, ना ये एकोमोडेशन है, ना ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है। स्विगी और जोमेटो अदर सर्विसेज है। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है जो कहता है जी मुझे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के डील करना है, बताइए मैं क्या करूं, पहले तो ये चेक कर लीजिएगा सर्विसेज है या गुड्स है। ओके, सर्विसेज है तो क्या 9-5 की सर्विसेज है या अदर सर्विसेज है? जैसे स्विगी जोमेटो, फूड सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, थेरेपी सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ही बोल रही, लीव दैट फॉर अ व्हाइल, अदर सर्विसेज व्हिच आर नॉट कवर्ड अंडर 9-5। कोई थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी तरह की रेकी एंड ऑल, दोज आर आल्सो सर्विसेज। I give you an example. Once a party came to me and said, I want to sell, they are two brothers. One says, I want to deal through e-commerce portal of Amazon. Okay, I said, what do you want to sell? He said, I want to sell the oils, therapy oils, aroma oils, all those. I said, okay. His brother said that I will be getting my services listed on Amazon, which are the therapy services. Various types of therapies are provided. These are the services that are provided. Now, friends, you have to make the distinction between goods and services. अब देखिए, जिस पर्सन ने कहा मुझे ऑयल सेल करने हैं, those are goods. And when those are goods, TCS is collected and it is mandatory for the person, जो ब्रदर नंबर 1 था, जो गुड सेल कर रहा था, अरे भाई तुमने अगर अपने ऑयल सेल करने हैं ना, तुम्हें तो जीएसटी में रजिस्टर होना ही पड़ेगा। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्सन हु इज सप्लाइंग द गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, और जब वो रजिस्टर होगा तो टीसीएस भी कलेक्ट होगा ही होगा। लेकिन सर्विसेज वाले में देखेंगे 9-5 वाला है, अच्छा तुम तो 9-5 वाले हो, अरे तुम्हारा होटल तो अभी 20 लाख क्रॉस ही नहीं किया, तुम तो एक प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कोई बात नहीं। थर्ड, तुम एक ड्राइवर हो जिसने अपनी गाड़ी लिस्ट करानी है, तुम लोगों को रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर इज द डीम्ड सप्लायर, नो क्वेश्चन ऑफ टीसीएस। लेकिन अगर आप एक रेस्टोरेंट है, स्विगी और जोमेटो के थ्रू खाना देना चाहते हैं, तो सेक्शन 24 माय डियर फ्रेंड्स कहता था मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब जो ब्रदर नंबर 2 आया मेरे पास, अरे तुमको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कोई 20 लाख का थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा। बोलता देखो ना मैडम कुछ तो होगा, मुझे अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, नया नया काम शुरू किया है, ऐसे ही लोग वैसे ही 18% जीएसटी नहीं देते हैं, बिल नहीं लेते हैं मेरे काम में। Then there is a notification 65/17, सेक्शन 24 ने मैंडेट किया, नोटिफिकेशन 65/17 ने अदर सर्विस प्रोवाइडर को एक बेनिफिट दिया कि ठीक है सेक्शन 24 में लिखा है तुम्हें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन हम तुम्हें 20 लाख या 10 लाख जो भी थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल है वो दूंगा। सुरेश जी अब मैंने 40 लाख की लिमिट नहीं लिखी, क्यों? मैं सर्विसेज में हूं, 40 लाख की लिमिट नहीं मिलती, right? So now I wrote 20 lakhs
और 10 लाख, अगर वो, इसका मतलब वो पर्सन जो अपनी थेरेपीज लिस्ट करा रहा है वो 20 लाख और 10 लाख का बेनिफिट ले पाएगा ड्यू टू द नोटिफिकेशन 65/2017. बट as soon as he crosses the threshold, he is supposed to get registered और उसके ऊपर TCS भी applicable हो जाएगा. तो सर्विसेज में गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया by way of a notification. What was the notification number? 65/2017. राइट? अब रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे तो जरा एक बार सेक्शन 24 देख लें. सेक्शन 24 में 3 प्रोविजंस हैं जो ई कॉमर्स और पर्सन सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स के साथ डील करते हैं. What are those 3 provisions highlighted in front of you? अब देखिए पॉइंट नंबर 4, यहां पे ये डील करता है ई कॉमर्स के साथ, ई कॉमर्स. पॉइंट नंबर 10 भी डील करता है ई कॉमर्स के साथ. अब ये दो क्यों? अरे 95 वाले 4 में कवर्ड है, अदर देन 95 वाले पॉइंट नंबर 10 में कवर्ड है. ओके, और जो पर्सन सप्लाई कर रहा है थ्रू ई कॉमर्स वो पॉइंट नंबर 9 में कवर्ड है. So we have 3 points that are dealing with the registration relating to e-commerce operator. Okay. अब देखिए पहला पॉइंट, पहले हम ई कॉमर्स को डील करते हैं. ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर तुम 95 के ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो तुम्हें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा. 95 वालों को कोई छूट नहीं. अब देखो, रूम बुक हुए थ्रू एमएमटी, हु इज द लायबल पर्सन? एमएमटी. इनके ऊपर टीसीएस भी नहीं लगता. लेकिन अगर मिस्टर एक्स होम स्टे दे रहे हैं थ्रू एमएमटी but the turnover is 23 lakhs, it is not 95. It is not 95. He will get, he is out of 95, but because he has crossed the threshold of 23 lakhs, 20 lakhs का threshold cross कर चुके हैं, जो रिसीट है वो 23 lakhs पे पहुंच चुकी हैं. He will be taking the registration and he will be taken as a supplier. और टीसीएस भी डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि अब वो 95 का रहा ही नहीं. 95 में टीसीएस डिडक्ट नहीं होता था. आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर, राइट? समझ आ रहा है कि सब गुल? कुछ बोले, कुछ पूछे तो पता भी लगे आप सब सुन रहे हैं. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. पॉइंट नंबर 10 डील करूंगी. 10 क्योंकि वहां भी ई कॉमर्स डील किया, यहां भी ई कॉमर्स डील किया. How will e-commerce operator know that how will e-commerce operator know that they have crossed the threshold limit? मैडम जब हम फॉर्म भरते हैं ना खुद को रजिस्टर कराने के लिए ई-कॉमर्स ऑपरेटर के साथ, उसमें ये क्लॉज एडेड होता है कि आपका जीएसटी नंबर है, आर यू पर्सन, अंडरटेकिंग ली जाती है कि आप थ्रेशोल्ड से नीचे. एंड मोर ओवर लेट मी टेल यू, ई कॉमर्स कंपनीज ने ना पक्का ही कर दिया हुआ है कि आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा अदर देन 95. सो उन्होंने अपने आप को ईज करने के लिए कह दिया हम आपसे डील ही तभी करेंगे जब आप जीएसटी का नंबर ले लें. 95 वालों में नहीं, बट अदरवाइज, राइट रुचिका मैम? अदरवाइज इन देयर फॉर्म दे हैव अ पर्टिकुलर क्लॉजेस मेंशनिंग ऑल दीज पॉइंट्स. नाउ एवरी ई-कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, इसका मतलब 95 वाले तो पॉइंट नंबर 4 में चले गए. जो अदर देन 95 हैं जिनको टीसीएस कलेक्ट करना है वो भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में आएंगे इन पॉइंट नंबर 10. नाउ एक क्वेश्चन पूछूं, अच्छे से आंसर देना सोच समझ के, सबके सब. क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर हर तरह का हमेशा रजिस्टर होगा या कोई एक्सेप्शन है? क्या कोई ऐसी एक्सेप्शन बता दीजिए जहां ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्टर नहीं होना. Give me, I will give you 2 examples of when the e-commerce operator is not required to be registered. Can you tell me, when you have read the registration of e-commerce operator, कौन से ऐसे 2 केसेस हैं जहां ई-कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्टर नहीं होना? मैं बताऊं एग्जाम्पल. ई-कॉमर्स ऑपरेटर selling organic vegetables. When he is selling organic vegetables,
माय डियर फ्रेंड्स, द प्रोडक्ट इज एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट. क्यों? यस जितिन भाई, वहीं पर है हम. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट ही टैक्सेबल नहीं है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा? उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. सेकेंड एग्जाम्पल सर्विसेज की भी देखती हूँ. चलिए बताइए सर्विसेज का क्या एग्जाम्पल होगा? सर्विसेज के केस में माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स सपोज कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो फूड सप्लाई सर्विस देता है. 95 वाला नहीं हो सकता, 95 वाले के लिए तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है. फूड सर्विस अदर देन 95 का ऑपरेटर है. अगर वो अदर देन 95 का ऑपरेटर है तो इसका मतलब, और उसके सारे पर्सन्स थ्रेशोल्ड से नीचे, यानी वो नोटिफिकेशन 17/17 का बेनिफिट ले रहे हैं. As a result, he is an e-commerce operator who is not required to collect the TCS. जब उसको TCS कलेक्ट नहीं करना तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी नहीं होगा. फ्रेंड्स, दो चीजें याद रखिएगा. ई-कॉमर्स ऑपरेटर, पहली बात, TCS तभी लगता है अगर प्रोडक्ट या सर्विस टैक्सेबल होती है. पॉइंट नंबर 2, TCS तभी लगता है अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड होता है. अगर सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो TCS के प्रोविजंस नहीं लगते. नाउ अब हम बात कर रहे हैं उस पर्सन की, तो ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि भाई सर्विसेज के केस में नोटिफिकेशन 65/17 का बेनिफिट है. गुड्स के केस में कोई बेनिफिट नहीं है. पर्सन, तुम्हें तो 100% रजिस्टर होना ही पड़ेगा अगर तुम अपने ऑयल सेल करना चाहते हो. हाँ, लेकिन अगर सर्विसेज लिस्ट कराना चाहते हो तो थ्रेशोल्ड का बेनिफिट बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन 65/17 अवेलेबल है. लेकिन अगर तुम 95 वाले हो तो तुम्हें रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, उसमें ई कॉमर्स रजिस्टर होगा. I think so we are clear with the registration provision. At least एक छोटा सा yes ही लिख दीजिए, छोटा सा yes. Why लिख दो, पूरा yes मत लिखो. Water. Okay, right. You रुचिका जी ने पूरी कंजूसी यूज की है. You know how I got this idea of why? Nowadays my daughter also goes for online classes na, so she doesn't know the typing well. So her teacher says you just write why only. पहला word लिख दिया करो. So that is what I tried with you all and I got a good response. Great. Okay, so Jitin bhai has added a yeah word also to it. Great. चलिए, now अब हम आते हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे. ये बेचारा बहुत परेशान है. क्यों? आपको पता है? अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछते हैं, फटाफट से स्लाइड मत देखना. अब एक अमेज़न है, वो मुंबई में भी गुड सप्लाई कर रहा है, पंजाब में भी कर रहा है, दिल्ली में भी कर रहा है, साउथ में कर्नाटका में भी कर रहा है, कोलकाता में भी कर रहा है, सूरत में भी कर रहा है, सब जगह कर रहा है. उसको कितनी रजिस्ट्रेशन लेनी है? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? कितनी रजिस्ट्रेशन लेनी है उसको? जल्दी से बता दो. 1 और मेनी? राजेश जी कहते हैं एक ही लेनी है. बाकी सब? Janam Shahji. Okay, so perfect answer by him. He is mandatorily to take the registration in all the states wherever the e-commerce operator is operating. There is no provision of centralized registration in GST. How come and why? सुनिए, e-commerce operator, अब यहाँ एग्जाम्पल देखो. लोकेशन ऑफ सप्लायर हरियाणा, सप्लायर हरियाणा में बैठा है. गुड्स कहां सप्लाई कर रहा है? ही सप्लाइंग द गुड्स टू राजस्थान, विच इज हिज प्लेस ऑफ सप्लाई. अब गुड्स जहां सप्लाई कर रहा है हरियाणा का पर्सन राजस्थान में, वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड, तो क्या लगेगा? IGST लगेगा. ओके, IGST लगा दिया. अब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर हरियाणा में ही सिटिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. IGST का 1% डिपॉजिट कराना है, आराम से करा देगा. सेकेंड, हरियाणा के सप्लायर ने हरियाणा में ही गुड्स देने हैं. ब्यूटी बाजार मुंबई ने रुचिका जी को गुड्स डिलीवर करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हरियाणा में है, C और S लगेगा, हरियाणा का 1% जो है वो डिपॉजिट करा देगा.
Right, Rajesh ji, for TCS only I was talking about. I will come to that point too. Now, location of supplier Haryana. गुड सप्लाइड इन हरियाणा, सी और एस लगेगा. लेकिन ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ये दिल्ली में बैठा है मतलब रजिस्टर्ड है. अब ये पर्सन दिल्ली में रजिस्टर्ड है. वन नेशन वन टैक्स इज अ मिथ. रीजन, मुंबई का सी और एस पंजाब के सी और एस के बराबर नहीं है. क्यों? आप जमा ही नहीं करा सकते, आप डिपॉजिट ही नहीं करा सकते. आप जब भी अपना लॉगिन खोलेंगे वो आपसे सी और एस मुंबई. अरे एस छोड़ो, यहाँ तो सी भी कॉमन नहीं है अक्रॉस इंडिया. सी भी करेक्टर लेता है जिस स्टेट के एस के साथ जाता है. अगर मुंबई के एस के साथ जाएगा तो ये महाराष्ट्रन गवर्नमेंट का हो जाएगा. अगर मतलब महाराष्ट्र का यूटिलाइजेशन पंजाब में नहीं हो सकता. सो ऐसा है राजेंद्र जी, व्हेन आई कम देयर तो मेरे को होटल में मत ठहराना, क्योंकि वहां का सी और एस जो है उसका क्रेडिट मुझे तो नहीं मिलेगा. राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग, अब प्रॉब्लम तो थी ई कॉमर्स ऑपरेटर दिल्ली के लिए. अब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर दिल्ली का है ना, उसको वो कैसे डिपॉजिट कराए? सो ही इज सपोज्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन इन हरियाणा itself to deposit the TCS of 1% of Haryana CNS. So wherever you are operating, you are supposed to take the registration is about. राजेंद्र जी ने तो ठीक है इनवाइट कर लिया, वो सोचे थे हमने तो इनवाइट ही नहीं करना, बार बार क्यों कहते हो बुला लेना. राइट, चलिए. Now, e-commerce operator, you are supposed to take registration in Haryana also, wherever the goods or services are rendered through it. Now, after this, a problem एक और. क्या राजेश भाई आपने अब बोल दिया कि ठीक है सब जगह रजिस्ट्रेशन ले लेना. अब ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना, प्लेटफॉर्म किसका है पता है? राजेश जी का ही है. सो राजेश जी चला रहे हैं वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. नाउ ही सेज कि मैडम मैं तो मुंबई बैठा हूं, मेरा ऑफिस तो मुंबई में है, आप मुझे बोलते हो हरियाणा जाके रजिस्ट्रेशन ले लो. कैसे ले लूं? वहां तो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है. आप मुझे मांगोगे जी मुझे रेंट दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, हाउ विल आई प्रोवाइड दैट? Government understood this issue and came up with the provision कि ठीक है तुमको REG 07 भर के रजिस्ट्रेशन लेना है राजेश जी के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को, बट दुविधा तो वहां जहां पे कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है. अब क्या करें? सो ये जूजू आ जाता है हर जगह जहां प्रॉब्लम होती है. नाउ जहां फिजिकल प्रेजेंस है कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां फिजिकल प्रेजेंस नहीं है गवर्नमेंट ने कहा अपने हेड ऑफिस का एड्रेस दे दीजिएगा. राजेश जी घबराते क्यों हैं? कोई बात नहीं, यू गिव द मुंबई एड्रेस, वी विल गिव यू रजिस्ट्रेशन इन हरियाणा. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, राजेश जी ने मुंबई का एड्रेस दिया REG 07 फॉर्म में और हरियाणा में अप्लाई कर दिया. हरियाणा का कौन सा रेंज, कौन सा वार्ड इस एप्लीकेशन को डील फॉर करेगा? क्यों? राजेश जी तो एड्रेस मुंबई का दे रहे हैं और हरियाणा वाला रेंज 1 का बोलेगा मेरा नहीं है, रेंज 2 का बोलेगा मेरा नहीं है, रेंज 3 का बोलेगा मेरा नहीं है. हु विल टेक दिस एप्लीकेशन? नाउ टेल मी, in order to overcome this difficulty in every state, government has made a separate office just for the registration of not non-resident dealer. Shreyansh ji, non-resident dealer is something else. Non-resident comes when there is what we say is outside India. But in this case, in every jurisdiction, every state, government has made a separate administrative jurisdiction for the purpose of e-commerce operator. So जो application राजेश जी लगाएंगे वो उस ऑफिस, एक सेपरेट प्रॉपर ऑफिसर बिठाया गया है particularly for the registration of e-commerce. उसके पास मुंबई की एप्लीकेशन भी आएगी, दिल्ली की भी आएगी, हरियाणा की भी आएगी, सारी एप्लीकेशंस वहीं जाएंगी. Got that? Got that? So this is the practical issue which we talk about registration. और फॉर्म में रूल में क्लियर कट लिखा है कि आपको पार्ट बी में एड्रेस देना है जी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां लोकेटेड है उसका.
राइट, और पार्ट ए में इंफॉर्मेशन देनी है जहां आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। आज एक पर्सन ने स्टार्टिंग में, अभी राजेश जी ने लिखा था फॉर टीसीएस, क्यों? आपको पता है अमेज़न को भी 2 रजिस्ट्रेशंस करानी होती है। कौन कौन सी? एक रजिस्ट्रेशन जिसमें वो अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, अपनी कमीशन ले रहा है, अपने चार्जेस काट रहा है, नॉर्मल अपनी इनकम दिखाने के लिए, REG 06। और एक रजिस्ट्रेशन उसकी होती है REG 07। REG 07 में in order to sell the products of some other person, which is the registration for e-commerce operator. So 2 रजिस्ट्रेशन होंगी, एक जिसमें वो अपना नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह 18% अपनी कमीशन इनकम पे टैक्स देता है, GSTR 1 और 3 भी भरता है, एक TCS कलेक्ट करने के लिए GSTR 8 में करेगा। और GSTR 8, किसी ने मुझसे पूछा GSTR 8 अमेंड हो सकती है? जी हाँ, देयर इज अमेंडमेंट ऑप्शन 2 इन GSTR 8। राइट नाउ, अब TCS प्रोविजन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, TCS के प्रोविजन इतने लंबे चौड़े, सेक्शन 52 हम नहीं पढ़ने वाले। 0.5 into 2 का रेट आप सबको पता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रोविजंस थ्रू अ सिंपल स्लाइड रादर देन दीज 4 बल्कि स्लाइड्स। हैव अ लुक। ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर था, सप्लायर जोमेटो पे गया, रिसीवर था, गुड्स और इनवॉइस सप्लायर ने दिया, इसने जोमेटो पे खाना ऑर्डर किया, उसने 1% TCS काट लिया। इस स्लाइड में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूं जो ई कॉमर्स की इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, जो अभी हमने कुछ कुछ डिस्कस की थी। क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली होनी चाहिए, तभी तो ई कॉम बनेगा, नहीं तो ई कॉम ही नहीं बनेगा, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 44। नाउ सेकेंड, एक इंटरमीडियरी होना चाहिए, ऑपरेटर, जो किसी के लिए प्लेटफॉर्म मैनेज करता है। 3 पर्सन, 1 2 and 3। ओके, थर्ड कंडीशन, पेमेंट ई कॉमर्स को आनी चाहिए। अगर पेमेंट डायरेक्ट सप्लायर को जाती है तो TCS के प्रोविजन नहीं लगते। The e-commerce should be responsible for collecting the payments. Goods or services taxable होने चाहिए। अभी अभी बोला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं लगेगा TCS, प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं सर्विसेज, अरे 95 वालों पे नहीं लगता भाई, कितनी बारी बता दिया। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन डीलर, इंपॉर्टेंट। What about COD on Zomato? सर, चाहे कैश ऑन डिलीवरी होता है, पेमेंट तो वही Zomato के अकाउंट में ही जाती है। सो इट्स अ डीम कलेक्शन बाय Zomato इटसेल्फ। वो Zomato वाला ही कलेक्ट करेगा और उसी के थ्रू वो डिलीवरी, वो Zomato ने ही डिलीवरी बॉयज रखे होते हैं, सो पेमेंट उनको ही कैश ऑन डिलीवरी मानी जाएगी, उनके अकाउंट में जाती है, सेटलमेंट होता है, सो इट इज एप्लीकेबल ऑन दैट टू। राइट नाउ, सर्विसेज नॉट कवर्ड बाय 95 नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है मेरे पास एक पर्सन आया, बोलता है जी मुझे, मेरा एक रेस्टोरेंट है, अमृतसर की बात कर रहे थे हम, चलो अमृतसरी कुलचे की बात कर लेते हैं। ही हैड अ वेरी फेमस शॉप हियर ऑफ अमृतसरी कुलचास, selling since last 40 years. He was under composition scheme. Composition. Now my question to you, can he be in composition? एक बात याद रखना, चाहे रेस्टोरेंट कॉम्पोजिशन स्कीम में हो चाहे ना हो, रेट 5% ही है। ITC नहीं मिलना, क्यों? रेस्टोरेंट सर्विस का रेट ही 5% है और ITC डिनाइड है। कॉम्पोजिशन में भी रेट 5% है, ITC डिनाइड है। नाउ टेल मी, कैन ही बी इन कॉम्पोजिशन स्कीम? यस और नो? यस और नो? वाई और एन कुछ तो लिख दो, वाई एन दोनों लिख दो। चलो, गिरीश जी कहते हैं हाँ जी, गिरीश जी, अच्छा रुचिका जी कहती है नो, कोई YN वाला भी है? सुरेश जी कहते हैं नो, क्योंकि करेक्ट आंसर Y और N ही है। सुनिए, 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 से पहले द आंसर वाज यस।
कॉम्पोजिशन सप्लायर ऑफ सर्विसेज अपने प्रोडक्ट्स कॉम्पोजिशन के थ्रू बेच सकता था, तो वो कुलचा वाला चल रहा था, कॉम्पोजिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। 1 जनवरी से अमेंडमेंट आया, उन्होंने बोला चाहे आप गुड्स प्रोवाइड करें चाहे सर्विसेज प्रोवाइड करें, अगर आप कॉम्पोजिशन में होंगे तो आप ई कॉमर्स के थ्रू डील नहीं कर सकते। पहले यहां सिर्फ गुड्स था, 1 जनवरी से सर्विसेज भी इंक्लूड कर दी गई, और सप्लाई ऑफ फूड सर्विस है। जितने रेस्टोरेंट हैं कॉम्पोजिशन में थे, they all are supposed to shift their registration to the normal dealer if they want to get their services through Swiggy or want to provide their services through Swiggy or Zomato. So now the answer is no, they cannot do so. A composition dealer, whether of goods or services or both, cannot make supplies through e-commerce operator with effect from 1st January 2021. Now, TCS is not applicable on transactions covered under RCM, lawyer services, GTA service. तभी मैं वहां GTA पे रुक गई थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं है। सो RCM प्रोविजंस पे, जिन पे RCM लगता है उन पे TCS के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। राइट आप में से कौन ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करता है? मैं तो नहीं करती ज्यादा, मुझे तो उसके बाद मंगवा लो तो वापस करना ही याद नहीं रहता, कौन सी आईडी यूज की थी, कहां से मंगवाया था, आई तो जस्ट फॉरगेट दैट। So just tell me, who all are operating, buying the goods through the e-commerce operators, through online, Amazon or Flipkart? जितना मंगवाते हो रिटर्न कितना करते हो, ये बताइए। So friends, ई-कॉमर्स ऑपरेटर में जितनी सेल्स मंथ में जाती हैं उसमें काफी ज्यादा रिटर्न्स आती हैं। सो एक चीज कही गई कि ई कॉमर्स ऑपरेटर, तुमने जो टीसीएस करना है वो क्या करो, जितनी टैक्सेबल सप्लाईज है, जितनी रिटर्न हो गई है वो माइनस कर दो, नेट करके 10 लाख की सप्लाई, 2 लाख रिटर्न, नेट 8 लाख पे टीसीएस जो है वो डिपॉजिट करा दो। मेरे 2 क्वेश्चंस है आपसे, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट द आंसर्स फॉर दैट। माय फर्स्ट इशू, लेट्स सपोज कोरोना कॉल वाज गोइंग ऑन, कोरोना में 1 लाख रुपए की सप्लाई हुई और 1,50,000 की रिटर्न आई पिछले मंथ की। व्हाट अबाउट दिस नेगेटिव बैलेंस ऑफ 50,000? अगली बारी के टीसीएस में एडजस्ट होगा या नहीं? Y और N? जल्दी से Y और N? नो, ओके। NP, Jigar ji, yes. Hemal ji, no. The answer is, the majority wins. Absolutely right, Rajesh ji. The answer is no. The negative balance of this, Jigar ji, has to be ignored. It will not be carried forward. My next question, whether this provision is to be checked e-commerce operator wise or supplier wise? ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, उसकी 4 पर्सन्स के साथ डीलिंग है, एक का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव, तीसरे का पॉजिटिव, चौथे का नेगेटिव। क्या उसको सप्लायर वाइज पॉजिटिव नेगेटिव करना है या अपने मंथ का टोटल लेके पॉजिटिव नेगेटिव करना है? मंथ का टोटल और सप्लायर वाइज। ओके, रुचिका जी कहती है सप्लायर वाइज। एनी अदर? श्रेयंस जी कहते हैं सप्लायर वाइज। Absolutely correct, Jigar ji. Shreyans ji, Shreyans, I think I'm pronouncing the right name. अरे अजय मेहता जी, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, अभी आती हूँ इस क्वेश्चन पे। Now, in this case, friends, let's suppose ABC Limited is an e-commerce operator, supplier A और supplier B से डील कर रहा है। Ultimately, इसका नेगेटिव इग्नोर हो जाएगा और इसके 45,000 के ऊपर टीसीएस भरना पड़ेगा। सो इट हैज टू बी चेक सप्लायर वाइज। राइट नाउ कमिंग बैक टू द एग्जांपल आल्सो, अब ये देखिए, इस पर्सन की पूरी सप्लाई थी 37,55,000 की। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट्स छोड़ दीजिए, क्यों? जो प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट या 95 की जो सप्लाई है उसके ऊपर तो टीसीएस लगना ही नहीं है, 550 वो भी माइनस कर दिया। अब जितनी रिटर्न्स आई
620 की वो भी माइनस कर दी। अब जो नेट सप्लाई बनेगी उसके ऊपर 1% जो है वो टैक्स डिपॉजिट करवाया जाएगा। Supplier in Mumbai selling goods to various states from stock held at e-commerce designated common warehouse. A supplier need to take state-wise registration for selling from those designated warehouses of e-commerce goods. अजय मेहता जी, पहला क्वेश्चन, वो प्लेस किसकी रजिस्टर्ड है कॉमन वेयर हाउस? इट मस्ट बी ऑफ द सप्लायर। सप्लायर ने उसको अपनी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस लिस्ट कराया होगा, क्योंकि आपका सप्लायर मुंबई में है। ही इज सेलिंग टू वेरियस स्टॉक स्टेट्स फ्रॉम द स्टॉक होल्ड एट ई कॉमर्स डेजिग्नेटेड कॉमन वेयर हाउसेस। सर, आप ये कहना चाहते हो कि मेरा जो सप्लायर है वो मुंबई में है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसके वेरियस गोडाउन है। सर, उस केस में उसने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर कराया होता है उसको, और वहां से वो सप्लाई करता है। सो उस केस में सप्लायर हु इज मेकिंग द वो क्या करता है, वो इंटर स्टेट सप्लाई का बिल काटता है। और अगर उसने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं रजिस्टर कराया, then there will be a problem. He cannot keep his goods with the godown of another person. I need an answer from your side, whether he has registered those places as his additional place of business, yes or no. चलिए, जब तक आप ये लिखते हैं हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, ई इनवॉइसिंग। नाउ द केस, और एक चीज और ऐड करती हूँ फ्रेंड्स, मुंबई और सूरत, मैंने यहाँ पे बहुत बार नोट किया है, इंक्लूडिंग पंजाब, बिकॉज बहुत डीलिंग्स रहती हैं पंजाब, मुंबई और सूरत की, खासकर सूरत और अमृतसर की, बिकॉज ऑफ द टेक्सटाइल मार्केट्स। लोग क्या करते हैं, गुड्स आते हैं, कपड़ा आता है, वो अपना गोडाउन नहीं है या गोडाउन का रेंट भरना नहीं चाहते, वो माल पड़ा रहने देते हैं ट्रांसपोर्टर के पास, महीना 2 महीने 4 महीने वही ट्रांसपोर्टर के पास माल पड़ा रहता है, उसको रेंट दे देते हैं, उसके पैसे दे देते हैं। Please make it sure, if you are using any person's place as your godown for keeping your material, you are supposed to get that place registered as your additional place of business. As your additional place of business. Otherwise, keeping your stock at somebody else godown is not something which is permitted in GST. I hope I could make out the point. Now, e-invoicing. अब एक बात बताइए, ब्यूटी बाजार मुंबई का जो इनवॉइस था वो बन के आना था, Amazon is the e-commerce operator in between, right? Who will do the e-invoicing? BB or A? BB और A? जल्दी से छोटा सा लिखना है बस, BB और A। आज मुझे पता है you all are getting lethargic to type the answers, so I have made the short forms. BB। क्या Amazon नहीं कर सकता? जी बिल्कुल कर सकता है। इनवॉइस बीबी का ही आना है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 50 करोड़ का टर्नओवर भी बीबी का ही देखना है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन Amazon को, ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये ऑप्शन दी गई है कि अगर बीबी चाहे तो तुम उसके बिहाफ पे ई इनवॉइसिंग कर सकते हो। ई कॉमर्स ऑपरेटर रिपोर्ट कर सकता है इनवॉइसेस ऑन द बिहाफ ऑफ देयर ऑनलाइन सप्लायर्स। अब सुनिए, अगर IRN जनरेट ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा तो असेस किस किस को रहेगा? ई कॉमर्स को भी रहेगा और सप्लायर को भी रहेगा। अगर सप्लायर अपना इनवॉइस खुद ही जनरेट करता है और ई कॉमर्स नहीं कर रहा है तो असेस सिर्फ और सिर्फ सप्लायर को रहेगा। इनवॉइस बीबी का, सिर्फ IRN जनरेशन की फैसिलिटी दोनों को दी गई है, डिपेंडिंग अपॉन द सप्लायर, कि वो कहते हैं मेरे से नहीं होता जी, तुम ही कर दीजिए। टर्नओवर किसका देखा जाएगा? टर्नओवर जो है वो बीबी का ही देखा जाएगा। I hope the point is clear with respect to the e-invoicing. Now, friends, we have to match your supplies with the supplies as declared by the e-commerce operator. E-commerce operator तुमको 10 दिन के अंदर अपनी GSTR 8 भरनी है। जैसे तुम GSTR 8 भरोगे, TCS की एंट्री सामने वाले के 2A में शो करती है। क्या 2B में TCS TDS की एंट्रीज आती है? द आंसर इज नो। पैसा
क्रेडिट लेजर में नहीं जाता। जैसे ही आप उस एंट्री को सिलेक्ट करते हो, पैसा कैश लेजर में जाता है। और अगर ये पैसा ज्यादा है, आपकी लायबिलिटी कम है, आप इस कैश लेजर का रिफंड भी ले सकते हो, बहुत आराम से मिलता है, बिकॉज कैश लेजर है ना, सो इजीली अवेलेबल। नाउ जैसे ही आप अपनी रिटर्न भरते हो, आपके ऑफिसर के पास, डीसी और अबव के पास पावर है कि वो आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स भी चेक कर सकते हैं। और अजय मेहता जी, स्टॉक ऑफ गुड्स held by the supplier in operator godown declared as his additional place। आपका पॉइंट भी आ गया सर। उसके अगर वो अपने ऑपरेटर के गोडाउन में अपना स्टॉक रखता है और जिसको उसने अपनी एडिशनल प्लेस डिक्लेयर किया होगा, करना ही पड़ेगा अजय जी, नहीं तो आप अपना स्टॉक वहां नहीं रख पाओगे। उसके पास प्रॉपर पावर्स हैं कि वो जाके वहां नोटिस सर्व कर सकता है, चेक कर सकता है, इंफॉर्मेशन मांग सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स जो आपने किया ऑपरेटर के थ्रू और जो स्टॉक उसके पास पड़ा होगा, राइट। अगर उसको अगर आपने जवाब नहीं दिया तो पेनल्टी तो लगी जाएगी 15 दिनों में। और एक चीज और, मैचिंग जरूर कर। GSTR 8 और GSTR 1 का डायरेक्ट मैच है। कल मुझे किसी ने पूछा, आई एट द सेम सेशन समवेयर, they rather in Surat itself, they asked me how will I get to know about the entries of GSTR 8। friends, आपके सारी TCS की एंट्रीज आपके लॉगिन में आती हैं। सेकेंडली, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ you can demand or you are being provided with the monthly statements by the e-commerce operator। Flipkart भी भेजता है, Amazon भी भेजता है, GoIbibo भी भेजता है, सब भेजते हैं। आपको उनसे वो मंथली स्टेटमेंट्स मंगवानी होती है और उसको रिकंसाइल करना होता है। अगर आपकी एंट्रीज GSTR 8 के साथ GSTR 1 मैच नहीं करेगी, आपको नोटिस आ सकता है, आपको डिस्क्रिपेंसी का। और देखो, अब Zomat also gives the statement, great सुरेश जी। Now अगर अब इसमें मिसमैच आता है, अगर तो गलती बिल्कुल एडिशनल प्लेस इन डिफरेंट स्टेट मींस यू हैव टू टेक द सेपरेट रजिस्ट्रेशन। अजय जी मैं आती हूँ, लेट मी जस्ट वाइंड अप दिस टॉपिक। नाउ अगर मैं बात करूंगी मैचिंग की, और अगर तो गलती सप्लायर एंड पे हुई तो पूरी की पूरी सेल ऐड होगी। क्यों भाई, आपने सेल नहीं दिखाई, आपने ई कॉमर्स के ऑपरेटर के थ्रू की थी। अगर गलती ई कॉमर्स ऑपरेटर की होगी, उसने नहीं दिखाई, तो उसमें एडिशन TCS पोर्शन की होगी अलोंग विद इंटरेस्ट, राइट। ओके, नाउ मुझे पहले गिरीश जी का और अजय जी का क्वेश्चन ले लेती हूँ। अभी हमने जो बात की थी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल गिरीश जी और अजय जी, अगर गोडाउन दूसरी स्टेट में होगा तो इन दैट केस आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो स्टेट वाइज लेना पड़ेगा, वहां करना पड़ेगा। अजय जी, इन GST देयर इज नो अदर वे आउट, यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन इफ यू आर कीपिंग योर। अजय जी, पूरा GST का सिस्टम हिला था, खासकर कपड़े वालों के केस में। वो सेल्फ की बिल्टियों पे बहुत काम करते थे, इफ यू नो दैट। यहां से माल भेजना है, सेल्फ की बिल्टी बना के भेज दो। क्यों? इन्होंने कभी टैक्स ही नहीं इस सेक्टर में लगा था। द एंटायर प्रोसेस ऑफ कीपिंग योर स्टॉक ऑन सेल्फ बिल्टीज वाज, और वन वे आई सजेस्ट यू अजय जी, आप अपना माल ट्रेड लोकली ओनली। अरे जितेन भाई, काम क्यों कम करते हो? काम थोड़ी ही कम करना है टैक्सेस की वजह से, कंप्लायंसेस की वजह से। व्हाट आई सजेस्ट यू, यू कैन सेंड योर गुड्स ऑन डिलीवरी चलान ऑन अप्रूवल बेसिस। So you get some time period and you need not to get the registration, but that depends upon your terms and conditions with the e-commerce operator also. So आप डिलीवरी चलान पे माल भेज सकते हो कि भाई मैंने अप्रूवल बेसिस पे भेजा था, होगा तो ठीक है, नहीं तो वापस कर दीजिएगा। So that option might exist अजय जी, depending upon the various other factors too, right? चलिए आगे चलते हैं। अब मैचिंग भी करा ली हमने। अब एक बात सुनिए, मैंने आपसे लोकेशन पूछी थी आउटसाइड मुंबई, जितेन भाई ने बस मातुंगा लिख के छोड़ दिया। चलिए बताइए कहाँ घूमने जाना है आप सबको? राजेश जी, बिल टू शिप टू आप इस केस में कैसे करेंगे? अभी तो माल बिका ही नहीं है, बिल टू किसको करोगे? आप कहना चाहते हो जी मैं बिल टू, अरे माल तो अभी आप सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर की वहां रखवा रहे हैं, हाउ इट कैन बी बिल टू एंड शिप टू सो एंड सो।
वो क्या कर रहे हैं राजेश जी, वो अभी ना हर स्टेट में ये प्रैक्टिकल अरेंजमेंट भी चलता है। जैसे ब्यूटी बाजार ने कुछ अपने प्रोडक्ट्स अमेज़न के पंजाब वाले वेयर हाउस में रखवा दिए या किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के, अभी तो माल ऐसे ही पड़ा हुआ है। सो आई डोंट थिंक सो द बिल टू शिप टू ऑपरेशन इज पॉसिबल हियर, राइट। चलिए नाउ, अच्छा घूमने कहाँ जाना था, कहीं किसी ने कहीं नहीं जाना लगता। Crawford Market. Now, what is this, Ruchika ma'am? UK. Okay, right. Great, जितेन जी। चलिए यूके चलते हैं। अब जितेन जी जब यूके जा रहे थे तो इन्होंने सोचा एयरलाइंस चेक कर लूं, होटल बुकिंग चेक कर लूं। त्रिवैगो पे गए, होटल बुकिंग्स चेक कर रहे थे। जब ये त्रिवैगो पे होटल बुकिंग चेक कर रहे थे, इन्होंने बुकिंग त्रिवैगो से करा ली कि ठीक है मैं तो रेडिसन यूके और हॉलिडे इन यूके में स्टे करूंगा। नाउ इन दैट केस Trivago, it approached MMT for getting the hotel booked in UK. My question to you is, holiday in UK का TCS कौन काटेगा, MMT काटेगा या Trivago काटेगा? जितेन भाई ने बुकिंग Trivago से कराई, पेमेंट Trivago को की, Trivago ने आगे MMT के हायर किया, MMT ने आगे हॉलिडे से इनको रूम प्रोवाइड किया। My question to you is, who will take the TCS of Holiday Inn in case of MMT or Trivago? जल्दी जल्दी T और M लिख दो, इतना कष्ट नहीं। Trivago, श्रेयंस जी सोच लीजिए, सब Trivago पे हैं, सब Trivago पे हैं। चलिए अब जरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मिस्टर कोरोना फ्री। सो जितेन भाई अभी यूके और सब जगह तो कोरोना फ्री ही जाएंगे। हाँ, इंडियन बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस बहुत जा रहे हैं यूके। सो मिस्टर कोरोना फ्री त्रिवैगो ई कॉमर्स ऑपरेटर इको वन से होटल बुक कराया। मेक माई ट्रिप वॉज द सेकेंड ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड MMT is liable because he is dealing with hotel. He is making payment to the hotel. So while making payment to the hotel, MMT e-commerce 2 will be the liable person. एक क्वेश्चन और बताना जरा जल्दी से, एंड करते हैं उसके बाद फिर हमको TCS भी कवर करना है। My question to you is, गोल्ड पे TCS लगता है क्या? गोल्ड पे सेल का रेट क्या है? 3%। तो क्या TCS लगता है? और अगर लगता है तो क्या किसी स्पेशल रेट पे लगता है कि 1% पे ही लगता है? हाँ जी जैनम जी, सर नाम ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ तो ठीक है, नहीं तो प्लीज आई एम वेरी सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। जल्दी जल्दी से, बिल्कुल लगता है, गोल्ड पे भी TCS लगता है, एब्सोल्युटली राइट, और 1% से ही लगता है, कोई स्पेशलाइज्ड रेट नहीं है। ये आपके FAQs है बहुत सारे, सब पॉइंट्स हमने कवर किए। हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फॉरेन वाले को भी लेना होगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन TCS का अलग होता है, नॉर्मल अलग होता है। नेट टैक्सेबल सप्लाईज आपकी GSTN और इवन सप्लायर वाइज कैलकुलेट होंगी। एग्जेम्प्ट सप्लाईज पे नहीं लगता, RCM बेसिस पे नहीं लगता, कॉम्पोजिशन वाला इसमें नहीं आता, गोल्ड पे लगता है। ऑल दीज पॉइंट्स आर कवर्ड हियर। TCS का पेमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू नहीं हो सकता। हाउ TCS कैन पास टू कस्टमर? सर TCS किसका लगेगा? क्या कस्टमर का TCS कटता है? अजय जी TCS तो आपका होटल का कटेगा ना, हु इज द सप्लायर, जिसकी सेल है, तो उसको तो पैसा। Oh yes, great, absolutely correct. What a oh yes. So I could make out that you realize the issue. Great. चलिए now नेगेटिव अमाउंट डिक्लेयर करना है, अगले मंथ इग्नोर, कहीं डिक्लेयर नहीं करना, अगले मंथ इग्नोर करना है। सो ये सब इश्यूज हमने डील फॉर कर लिए। अब जरा रिटर्न की बात भी कर ले, फिर बाद में बोलोगे रिटर्न का तो बताया नहीं कैसे भरनी है। TCS की एंट्रीज पार्ट C 2A में आती हैं, 2B में नहीं आती हैं, इसलिए मैनुअली भरनी पड़ती है 3B में। पैसा कैश लेजर में जाता है, नॉट इन द क्रेडिट लेजर। कहां सप्लाईज दिखानी है? 4C टेबल में, 5B टेबल में, और अगर B2B है, B2C है, या फिर 7A2 टेबल में अगर B2C स्मॉल है। इसमें एक बात याद रखना, एक चेकबॉक्स आता होता था स्टार्टिंग में छोटा सा, वो चेकबॉक्स अगर ऑनलाइन रिटर्न भरते हो ना उसमें गायब है।
वो सिर्फ ऑफलाइन यूटिलिटी में। फॉर एग्जाम्पल हॉलीडे इन यूके, अच्छा यूके पे देख जाते हैं, लेट्स सपोज हॉलीडे इन मुंबई, हॉलीडे इन मुंबई का टीसीएस जो था वो एमएमटी ने काट लिया। सो इन दैट केस जितेन भाई हमको यूके ले गए, फॉरेन इन्वॉल्व कर दिया ऐसे ही, चलो हम इंडिया में ही रहते हैं क्योंकि फिर वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे, वहां का होटल एंड ऑल, राइट। चलिए, सो बी इंडियन बाय इंडियन, सो लेट्स गो टू हॉलीडे इन गोवा। नाउ 4C 5B 7A2 ऑफलाइन यूटिलिटी में चेक बॉक्स आएगा फॉर मार्किंग दैट दिस ट्रांजैक्शन इज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। ऑफलाइन में आएगा, ऑनलाइन में नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर पैसा ज्यादा हो गया, रिफंड। अब सुनिए, एमएमटी ने टैक्स ज्यादा जमा करा दिया, अभी तक हॉलीडे को क्रेडिट नहीं दिया, तो ज्यादा जो डिपॉजिट करा दिया उसका एमएमटी रिफंड ले सकता है। लेकिन एक बार आपने डिडक्टी के अकाउंट में डाल दिया जीएसटीआर 8 भर के, तो ज्यादा या कम उसका है, अब वो ले सकता है, राइट। आई होप द प्रोविजंस ऑफ दिस आर क्लियर। ये मैंने एक छोटा सा डाला है, आज से 15-16 साल पहले टी बोर्ड ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया था। सो टी बोर्ड भी एक ई कॉमर्स पोर्टल है। आपको पता है हर साल चाय के बागों का, असम का ऑक्शंस होती हैं। सो उन्होंने ऑक्शन आज से 15 साल पहले ऑनलाइन कर दी थी। पेमेंट भी बायर की एस्क्रो अकाउंट्स में आती थी, एंड these are held, the T-board account is held as an e-commerce operator, and for that the government has issued a particular circular, right? With this our TCS provisions are over. साइट कैसे दिखती है अब तो सबको पता है, कहाँ कहाँ होती है। अच्छा, ये मैंने एमएमटी का GoIBibo का भी डाला है कि वो कैसे अपना जीएसटी लगाते हैं अपनी कमीशन पोर्शन के ऊपर, और फिर जितने का होटल होता है उसका 1% करके 1079 इफेक्टिव रेट था, जैसे 1% उसका टीसीएस आपसे कलेक्ट करते हैं। दिस इज हाउ देयर वाउचर लुक्स लाइक, जो एमएमटी मेरे क्लाइंट को भेजता है फॉर गेटिंग देयर रूम बुक्स थ्रू एमएमटी। सो दिस वाज एन एग्जांपल। गिरीश जी ने बोला गोल्ड ऑन, ये स्लाइड ना जानबूझ के खोली है, थोड़े बचपन के दिन याद कर लीजिए। घूम आए गोवा, यूके भी घुमा दिया जितेन भाई ने, मारियो खेल लीजिए, कुछ कुछ ये है तो जस्ट कैंडी क्रश, and let's watch some videos on Netflix. Meanwhile, I take the question of Girish ji. Gold ornament sold by a citizen, then not a registered dealer, then will TCS be done by the purchaser? Sir, गिरीश जी ऑनलाइन हो रहा है क्या, ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू है, पहले ये बताओ, फिर मैं टीसीएस का आंसर दूंगी। गोल्ड ऑर्नामेंट सोल्ड बाय अ सिटीजन, आपको पता है गोल्ड ऑर्नामेंट्स नो, तो फिर टीसीएस कैसे आया? टीसीएस तो ई कॉमर्स में लगता है। खिचड़ी हो गई सारी मिक्स। और आप पता है क्या लिंक कर रहे हो, वो जो एक नॉन रजिस्टर्ड पर्सन अगर एक ज्वेलर को देता है गुड्स, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाता। क्यों? अब आपकी वाइफ ने पुराना कोई सेट निकाला और ज्वेलर को सेल किया और बोला इसके बदले में न्यू दे दे, तो आपकी वाइफ के लिए वो एक सप्लाई नहीं है, तो शी इज नॉट डीलिंग इन इट, इट्स नॉट हर फॉर कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ योर वाइफ इट्स नॉट अ सप्लाई। आ गया याद? You are mixing these two questions. Question from one member: supplies made to B2C via e-commerce. No, sorry, please, you're free to ask anything, whatever comes to your mind, but it's good to see that you all are applying your brains. Supplies made to B2C via e-commerce operator to be mentioned in GSTR 1 under B2C. अभी बताया member जी, direct पूछ लीजिए। ये देखिए, B2C small is to be shown under 7A2 table. 7A2 table, वो प्रॉपर उसमें जो भी बना है 7A2 में, उसमें आपको इसको दिखाना है, राइट? चलिए आगे चलते हैं। 7A2 टेबल है स्पेसिफिकली। हाँ जी, अब हम जरा ई कॉमर्स वर्सेस OIDAR की बात करते हैं। Essentially automated, मिनिमल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना तो वो चीज हो ही नहीं सकती। अरे कैसे दीपिका पादुकोण दिखेगी आपको
on this channel, कैसे विराट कोहली आएगा बिना information technology के? So but it includes such as, these are the examples given. मैंने सबके आगे आगे examples डाल दिए. Advertising on internet, Facebook, Google. Cloud services, GoDaddy. आज किसी ने वो एक cloud service का और एक example भी डाला था starting में. I think so. I don't remember the name किसने डाला था. Facebook, GoDaddy. Music, e-books provide करना through internet, Gaana.com for example. Data retrieval service, अरे you're on Textman. Online digital content, movies, television shows, music, Sony Live, and so on. Digital data storage and online gaming. All these are OIDAR services. Twin conditions, automated होना चाहिए, human intervention नहीं होना चाहिए. Taxman, my dear friends, अगर book sell करता है तो वो OIDR नहीं है, वो तो book sell कर रहा है. लेकिन जब वो आपको data retrieval दे रहा है तो वो OIDAR है, as per the definition of OIDR. अब देखो इस चार्ट में एक PDF डॉक्यूमेंट है, मैनुअली ईमेल हो रहा है, मैनुअली. क्या ये हो सकता है? अरे नहीं, ये तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं है, ये OIDR नहीं है. PDF डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली ईमेल हो जाता है, यस, ऑटोमेटिक, OIDAR है. PDF डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली डाउनलोड, यस, OIDAR है. एक फोटोग्राफ, स्टॉक फोटोग्राफ अवेलेबल फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड, यस. Wherever the things are automatic without any human intervention, those are OIDAR. Pre-recorded videos, मेरी जरूरत ही नहीं है, YouTube पे देख रहे हो, OIDAR है. But if there is a live tutor, then it is not OIDAR. It is the photograph's content is sent in digital form, individually commissioned. Human intervention, it is not OIDAR. So these are the examples. Amazon, Flipkart, सामने वाले का delivery availability होना जरूरी है. These are not OIDR. Just a minute, sorry. Now, whereas Prime Video, Facebook, Ludo King, and so on, all these are Hotstar, all these are your OIDR services. Friends, आपको पता है OIDR का कॉन्सेप्ट आया क्यों था? ये इसलिए आया था, एक पर्सन जो इंडिया में बैठा है और ऑनलाइन गेमिंग प्रोवाइड कर रहा है. सो जैसे गिरीश जी ने अपना एक खोल लिया, प्रॉपर ऐप वैप बना के अच्छे से, सो उसको तो टैक्स देना पड़ता था. लेकिन एक पर्सन जो OIDR प्लेटफॉर्म पे है, आउटसाइड इंडिया है और इंडिया में वो अपनी गेम्स चला रहा है, गवर्नमेंट उसको पकड़ना चाहती थी टू ब्रिंग एन इक्वालिटी. उन्होंने OIDR सर्विसेज का कॉन्सेप्ट इसलिए लेके आए कि भाई तुम अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी दे रहे हो, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, जब जो मर्जी चाहे देख सकता है. अगर तो B2B सप्लाई होगी तो RCM लग जाएगा, लेकिन अगर B2C होगी, अब किसी का जो चाइल्ड है वो बैठ के कोई सॉन्ग्स डाउनलोड कर रहा है, कोई वीडियोस डाउनलोड कर रहे हैं, सो इन दैट केस अगर B2C है तो देन यू हैव टू टेक अ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. किसको? OIDAR को, Gaana.com को रजिस्टर कराना होगा अगर वो एक आउटसाइड इंडिया का OIDAR है. अब एक और बात बताओ, ऐप स्टोर तो चलाते हो ना, गूगल प्ले तो चलाते हो ना, NTOR की डेफिनेशन भी दी हुई है, नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन रिसिपिएंट, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट. जैसे अभी मैंने कहा योर चाइल्ड he is not registered, is a non taxable online recipient. Government, local authorities इसमें covered है. इन केसेस में अगर OIDAR सर्विस है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होती है. मैं प्लेस ऑफ सप्लाई पे नहीं जा रही हूँ OIDAR के, बट क्या बताना चाहती हूँ, कई बार हम गूगल प्ले को यूज करते हैं नेटफ्लिक्स को डाउनलोड करने के लिए, या नेटफ्लिक्स, गूगल प्ले एंड यू योरसेल्फ. Wow, what a diagram. Now in this case this is the intermediary and इसको डीम्ड सप्लायर माना जाएगा, इसको इको माना जाएगा एंड नेटफ्लिक्स को OIDAR माना जाएगा. I hope you got that. ये मैंने specifically डाला है because sometimes the Google Play comes in between. So इनकी पूरी taxability कैसे होती है अगर दोनों इंडिया में है, OIDAR भी और रिसीवर भी,
तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देगा, फिर तो वो नॉर्मल इंडिया में रजिस्टर्ड है, लाइक योर हॉटस्टार। हॉटस्टार एक OIDAR है, इंडिया का ही है, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में कवर्ड है। लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया का है, सो वो कैसे, किसको सर्विस दे रहा है, NTOR को दे रहा है, B2C दे रहा है, B2B दे रहा है, ऑल दीज पॉइंट्स में टैक्सेबिलिटी कैसे रहेगी, आई पुट इट इन अ चार्ट। NTOR में वैसे मैं बता चुकी हूं, अगर B2C सप्लाईज होती हैं तो ओवरसीज सप्लायर के केस में उसको इंडिया में रजिस्टर होना पड़ता है, लेकिन B2B सप्लाईज में रिसिपिएंट RCM में टैक्स पे कर देता है, और इंटरमीडियरी के केस में FCM टैक्स देता है, फॉरवर्ड बेसिस पे डीम्ड पर्सन को देना पड़ता है। I hope so the provisions of TCS are clear so that we can move to TDS provisions. जल्दी से yes बोल दो, फिर फटाफट से TDS। I know I will not come in between your Saturday evening. अच्छा, आप कितनी जल्दी जल्दी से yes बोल रहे हैं कि TDS फटाफट से कवर हो जाए। Right, I will not come in between your Saturday evening. I will finish it off in 20 minutes with lots and lots of examples. चलिए डील करते हैं सेक्शन 51, TDS से डील करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइएगा मुझे, TDS क्या गवर्नमेंट सप्लाईज को लगता है? क्या क्या सप्लाई कर सकते हो आप गवर्नमेंट को? मैं एग्जांपल्स दूंगी, उससे पहले जल्दी से आप कुछ एग्जांपल्स दे दो। सोचो सोचो, सिर्फ कंस्ट्रक्शन सर्विस मत बोलना, इट्स वेरी बोरिंग। हर बार ही बोल देते हैं गवर्नमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, पता नहीं कितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। जल्दी, क्विकली, आई गिव यू द एग्जांपल्स। पहले एग्जांपल्स, मीनवाइल यू आर राइटिंग द एग्जांपल्स, goods to PSU. And you know, I am also very poor at typing. I to always use those voice messages rather than sending the long messages. Goods to PSU company. अरे गिरीश जी, उसका ही तो एग्जाम्पल पूछ रही हूँ। What are the goods you generally supply to PSU companies? Anyhow, have a look. TDS is applicable कौन? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज और कुछ नोटिफाइड पर्सन। फ्रेंड्स, ये डायग्राम आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलती है, यहाँ पे लिख देते हैं नोटिफाइड पर्सन अंडर नोटिफिकेशन, और उसमें कितने पर्सन है? उसमें ये 3 पर्सन। सो बैंक्स वगैरह पे ये लगता है, यस लगता है, अगर वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं तो, यानी उनका इक्विटी का होल्ड कैसे है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है कि नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं या नॉन पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, तो नहीं लगेगा, अदरवाइज TCS के प्रोविजन लगेंगे। सोसाइटीज भी जो गवर्नमेंट ऑन करती है उस पे भी लगता है, अथॉरिटीज और बोर्ड्स जिनकी 51% से इक्विटी ज्यादा गवर्नमेंट की है उस पे भी लगता है। किस पे नहीं लगता? एक PSU दूसरी PSU से डील करेगी, TDS नहीं काटेगी। अरे सब कुछ गवर्नमेंट का ही है, एक पॉकेट से लेके दूसरी पॉकेट में डाल रहे हो, नहीं लगेगा। TDS तो इसलिए आया, लोग इनकम नहीं दिखाते, गवर्नमेंट तुम्हारे साथ डील कर रहे हैं, तुम TDS काट लो, हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स की इनकम नजर में आ जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अदर देन एनेक्स्चर है, जो एनेक्स्चर A में लिखी हुई है उन पे एप्लीकेबल है, बाकी जो एनेक्स्चर A में नहीं है उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे लगेगा। 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, अगर ये लोग आपस में डील कर रहे हैं, government with local authority and so on, 1 person to another person specified in clause A, B, C and D, ये आपस में डीलिंग करेंगे तो TDS नहीं लगता। एग्जाम्पल्स पूछी थी मैंने आपसे, देखिए कितनी सारी एग्जाम्पल्स है गिरीश जी। सप्लाई ऑफ गुड्स की क्या क्या सप्लाई कर सकते हो? स्टेशनरी आइटम्स, टॉयलेटरीज, टॉवल्स, फर्नीचर, ACs, electrical goods, books and periodicals, medicines, lots of supply to the government. Lots of services are being supplied to the government, like car rentals, like the buildings on rent, generator rents, office rents, maintenance service, rentals of machinery. What can be the composite supplies that are supplied to the government? Works contract, रोड्स एंड ब्रिजेस के, डेवलपमेंट एंड रेनोवेशन के, फॉर दिस मेंटेनेंस सर्विसेज जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व हैं। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स जिनके साथ हम गवर्नमेंट के साथ इन टच आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अब गिरीश जी ने क्या किया, गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना था, ही साइंड 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट अगर 2.5 लाख से एक्सीड करता है तो TCS लगता है, और अगेन सेम पॉइंट, टैक्सेबल सप्लाईज होनी चाहिए।
अगर सप्लाई टैक्सेबल नहीं होती तो जीएसटी नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बुक्स प्रोवाइड कर रहे हो गवर्नमेंट की लाइब्रेरी के लिए तो टीसीएस नहीं लगेगा। क्यों? बुक्स आर नॉट टैक्सेबल। अब कॉन्ट्रैक्ट देखना था और ये भी मैंने लिख दिया, जीएसटी पोर्शन छोड़ के देखना। माय क्वेश्चन टू यू इज, गिरीश जी ने 3 कॉन्ट्रैक्ट किए सेम डे, सेम चीज के, 2-2 लाख के। बताइए टीसीएस लगेगा या नहीं लगेगा? टीसीएस लगेगा या नहीं लगेगा? राजेश जी कहते हैं नहीं लगेगा। चलिए राजेश जी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बिल्कुल नहीं लगेगा, यू आर राइट, हैव अ लुक। वैसे वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स होंगे टीसीएस नहीं लगेगा। इनवॉइस अगर 1/10 से पहले होगा तो भी नहीं लगेगा, या पेमेंट 1/10 से पहले आई होगी तो भी नहीं लगेगा, क्योंकि 1/10/2018 से पहले टीसीएस ही नहीं था। अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर गवर्नमेंट डील करती है तो टीसीएस नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज की ट्रांजैक्शंस पे टीसीएस नहीं लगता। सेस के कंपोनेंट पे भी टीसीएस नहीं लगता। इसका मतलब अगर आप गवर्नमेंट को कोल्ड ड्रिंक सप्लाई कर रहे हो, कार्स की सप्लाई कर रहे हो, सेस के कंपोनेंट पर टीसीएस नहीं, टीडीएस नहीं लगता। नाउ अगर आपने मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स किए, अब जैसे एबीसी है, उसने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ 3 कॉन्ट्रैक्ट किए, ऑल 3 आर बिलो 2.5 lakhs, no, there will be no combined value will be taken. Although the combined value is greater than 2.5 lakhs, no TDS is required to be deducted. Every registered TDS is every registered TDS deductor, उसको कौन सी रजिस्ट्रेशन करानी है? GSTR 7 में करानी है। और अच्छा, टीडीएस की रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड है कि टैन बेस्ड भी है? जल्दी से बता दीजिए, पैन बेस्ड है कि टैन बेस्ड भी है? बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास पैन नहीं है। सो एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट ने टैन बेसिस की भी रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी टीडीएस वालों में दी हुई है। जीएसटीआर 7 10 डेज में जानी है, नहीं भरोगे तो फाइन लगेगा। आपके सामने पेनल्टीज भी लिखी हुई हैं, और अब तो ये पेनल्टीज के अमाउंट कम हो गए हैं। इंपॉर्टेंट इश्यू, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डिड इन ई कॉमर्स ऑपरेटर। हमने वहां ई कॉमर्स ऑपरेटर को सारी स्टेट्स में रजिस्टर करा दिया, कराया था ना। यहां हम कहेंगे रहने दो जी, टीडीएस ही मत काटो, सब जगह रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स। सप्लायर भाई साहब बैठे हैं और लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है, सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, गवर्नमेंट भी वहां की है, 1% टैक्स सी और एस का काट लेगी। लेकिन स्टेट ए में लोकेशन ऑफ सप्लायर है और स्टेट बी में सप्लाई हो रही है, इंटर स्टेट सप्लाई है, कोई बात नहीं, आईजीएसटी का 2% टीडीएस गवर्नमेंट काट लेगी। सप्लाई ए स्टेट में, प्लेस ऑफ सप्लाई बी स्टेट में, इंटर स्टेट सप्लाई है, हाँ, बट गवर्नमेंट तो किसी तीसरी स्टेट में बैठी है। अच्छा चलो पहले हम कहते हैं वो ए स्टेट में ही बैठी है, कोई बात नहीं, 2% टैक्स जमा करा देगी। लेकिन अगर मैं कहती हूँ गवर्नमेंट स्टेट सी में बैठी है तो वो कैसे जमा कराएगी? एज अ रिजल्ट आपको इंट्रा स्टेट सप्लाई में दिक्कत आएगी। जब इंट्रा स्टेट सप्लाई और गवर्नमेंट कहीं और बैठी है, क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेनी है? नो, टीडीएस ही नहीं काटना। थोड़ी सी एग्जाम्पल बता दीजिए, तो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, हैव अ लुक। नाउ गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आगे भी। गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, सप्लायर भी कोलकाता का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी कोलकाता की, और गवर्नमेंट भी वेस्ट बंगाल की, कोई प्रॉब्लम नहीं, सी और एस लगेगा और टीसीएस कट जाएगा। अब पर्सन जो है, गवर्नमेंट है पंजाब की, दिल्ली का सप्लायर, दिल्ली अब पंजाब की प्लेस ऑफ सप्लाई, कोई बात नहीं, इंटर स्टेट सप्लाई आईजीएसटी लगेगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट, आईजीएसटी लगेगा, गवर्नमेंट आईजीएसटी का 2% डिपॉजिट करा देगी, टीडीएस लग जाएगा। लेकिन वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने दिल्ली के कॉन्ट्रैक्टर को बोला, भाई दिल्ली में बंगला साहिब रेनोवेट कर दीजिए, या गवर्नर हाउस या कुछ भी, बंगला साहब, बंगला भवन रेनोवेट कर दीजिए दिल्ली में।
गवर्नमेंट बैठी है वेस्ट बंगाल में, लोकल CRS लग रहा है, कहां से डिपॉजिट कराएगी TDS? अब क्या वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेना होगा? नो, TDS ही नहीं लगेगा. This is the difference between TCS and TDS provision. वहां क्या था, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था हर स्टेट में, क्योंकि वहां का TCS डिपॉजिट कराना था, बट TDS में वो कहते काटो ही मत. अब देखो कितने सारे एग्जांपल्स हैं, फटाफट से देखते हैं. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ गवर्नमेंट के, 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट हो गई 3 लाख की. यस, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है, TDS काटना पड़ेगा. एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ. अब सुनिए, 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट तो बुक्स के लिए था, 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट कार्ड्स के लिए था. 3 लाख की सप्लाई एक टैक्सेबल सप्लाई है, 2 लाख की सप्लाई एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है. TCS सिर्फ और सिर्फ 3 लाख पे लगेगा, TDS सिर्फ और सिर्फ 3 लाख पे लगेगा. एग्जेम्प्ट गुड्स के ऊपर TDS नहीं लगता. फाइनेंस डिपार्टमेंट 1.5 लाख का को कार रेंटल्स पे दिया, अरे 2.5 लाख से नीचे है तो नहीं लगेगा, 2.5 लाख से ऊपर जाएगा. एंड 2.5 लाख कैसे देखना है, विदाउट GST. अब अगली एग्जांपल देखिए, 2.6 लाख इंक्लूडिंग GST है, बिलो GST करूं तो 2.32 लाख बनता है, नहीं लगेगा. गवर्नमेंट को जनरेटर दिया, 5 लाख की पेमेंट कर दी, बिल्कुल लगेगा. लेकिन अगर आपकी कोई भी सप्लाई किसी भी नोटिफिकेशन में एग्जेम्प्ट होगी तो TDS नहीं लगेगा. और जो TDS जिसको काटना है उसको मैंडेटरी रजिस्टर होना पड़ेगा, पैन और टैन बेसिस पे. साइट के प्रिंट आउट्स आपके सामने है. और देखो, TCS का क्रेडिट ऐसे शो करता है या TDS का क्रेडिट ऐसे शो करता है. जैसे ही आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करते हो, इस तरह से आपके 2A में दिखता है. उसकी अमेंडमेंट, उसके TCS और TDS और TCS की अमेंडमेंट, TCS और TDS और उसकी अमेंडमेंट, TCS और उसकी अमेंडमेंट. 2B में नहीं आता. नाउ जैसे आप उसको एक्सेप्ट करते हो, देखो एक्शन, जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करते हो, ये पैसा आपके कैश लेजर में जाता है, कैश लेजर. और अगर ये आपने एक्सेस डिपॉजिट करा दिया, सेम रूल, अगर गवर्नमेंट ने एक्सेस कराया, अभी तक आपको क्रेडिट नहीं दिया तो डिडक्टर ले लेगा रिफंड. अगर आपके नाम पे डिपॉजिट हो गया तो डिडक्ट ही ले लेगा. व्हाई डज वन नीड टू एक्सेप्ट TCS? मैडम, जैसे ही आप सेट करते हो ना, तभी वो आपके कैश लेजर में आके फॉल करता है, वो एंट्री वहां. और आपको पता है रुचिका जी, कई बार हमारे अकाउंट में एक्सेस ट्रांजैक्शन आ रही होती है, हमने वो सेल की नहीं होती, गलती से नंबर मेरा डल गया TDS और TCS में, हम उन एंट्रीज को एक्सेप्ट नहीं करते और अपने पर्सन को लिख के भेजते हैं, मतलब ई-कॉमर्स ऑपरेटर को, कि दीज ट्रांजैक्शंस डज नॉट बिलोंग टू मी. So that is why these need to be accepted. When you accept, only then the money goes into the cash ledger. Right? So with this, I end up my deliberation. Thank you so much for such a patient listening for almost continuously 2 hours. Any issues, Jitin bhai or whosoever is there, Arif ji, Rajendra ji, we can proceed with the queries if any. Chat box में की सारी queries तो हो चुकी है. Any queries, members can raise the hand, or for 1 or 2 questions we can take, madam, if any pending. I think you got almost everything. If anyone has questions, they can post or they can just raise the hand. Madam, तो रुचिका जी बोले ना TCS, TDS का, many people don't know that they have to accept. After few months, they come to know that TCS collection आ गया है, TDS आ गया है. Yes, I've seen so many clients, they have not accepted for 3 months, 4 months, 5 months. जितेन जी, सेम हैपेंड विद मेनी ऑफ आवर क्लाइंट्स आल्सो. मतलब मेरे पास कोई पर्सन आए थे, उनको मैंने बोला आपको तो वो रिफंड के लिए आए थे. सो देन आई सॉ इतनी TDS TCS की एंट्रीज आ रही है, इतने मंथ्स उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की. फिर मैंने 9 मंथ्स की उनकी इकट्ठी एक्सेप्ट की, फिर वो उनके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट की, और वो उस मंथ अमाउंट फिर इतना ज्यादा हो गया कैश लेजर में दैट वी अप्लाइड फॉर द रिफंड एंड वी गॉट द रिफंड वेरी इजी.
Second thing, madam, what I have found from my clients, and that we have done when we are paying through Amazon Pay, suppose Tata Sky subscription or anything else, then the bill is not generated. It is treated as third party payment and bill is not generated. We don't get the ITC credit. Like suppose I am paying for my Tata Sky subscription or I am paying for my Jio phone and I am paying through my Amazon Pay balance, then they don't raise the invoice. Jio doesn't raise the invoice at all. Sir, It I'm is not telling in you our- ना, because those are B2C operators. तो अगर आपको अपना GST नंबर देना होता है तो वो बोलते हैं कि हमारी दूसरी साइट पे जाइए और अपना लिख के भेजिए कि मुझे बिजनेस पर्पसेस के लिए डील फॉर करना है. GST registered है, but once the GST is registered, when you are paying through net banking, you get the invoice, you get the ITC credit. But when you are paying to some Amazon Pay or something else, na, we are not getting ITC Okay. credit. This is what I That- have observed in last few months. Okay, that might Now, be. Vodafone also, so after this e-invoicing, they have I think not done e-invoicing. So people are not getting that ITC credit for Vodafone payments, recharges. Yes sir. और एक चीज और बता दूं व्यूअर्स के लिए भी कि अगर सामने वाले के ऊपर ई इनवॉइसिंग लगती है और वो आपको ई इनवॉइसिंग का बिल नहीं दे रहा है तो आपकी सेक्शन 16(2) के अकॉर्डिंग वो एक वैलिड इनवॉइस नहीं होता और इसलिए आप भी उसके ऊपर क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते. द इनवॉइस मस्ट बी अ वैलिड इनवॉइस. Is there any time limit to accept the entries? No, Janam ji, there is no time limit. जैसे मैंने अभी बताया और अभी जितेन भाई ने भी बताया कि कुछ 5, 6, 10 months का हमने इकट्ठा accept किया तो वो हमारे कैश लेजर में रिफ्लेक्ट कर गया. So there is no particular time limit as such. I think now I think it is for present vote of thanks. Yeah, madam. No, I was just adding on to the point कि GST law में TCS TDS certificates का एक section था लेकिन for the time being वो redundant कर दिया गया है. So as a result अभी जैसे रुचिका जी ने पूछा कि भाई accept क्यों करना पड़ता है तो मैंने उनको एक reason बताया कि वो तभी आप accept करिए show करते हैं. TDS TCS के certificates का provision भी रुचिका जी अभी GST law में से हटा दिया गया है. So as a result when they give you those entries you are supposed to accept that and then it reflects in your cash ledger. So जो entries आपको belong नहीं करती है उसको accept नहीं करिए. Today, as we have this lecture on e-commerce. This Zomato is already listed, and people are making money in Zomato, and everywhere people are talking about Zomato only. So without any investments, and these type of people are now, and they have a loss in their books. Then also it is listed, and people are making money. I think it was great that you accepted our request for this series, and you, Sneha madam and Didi, you have taken 3 lectures, and it was really wonderful that and really appreciate your presentations. Whenever you send your presentations, it covers lot of examples, and many people have sent me personal message also that it was really wonderful. Thank you very much, and we might plan GST series 2. After nowadays income tax audit season will start. So after 2-3 months or something, whenever we are planning for this GST specific, industry specific GST, like e-commerce, like hospitality is there, Yes, and yes. real estate is there. Healthcare, charitable institutions Yeah, are there. so many others are there. So if possible, we will try to contact you, and if time available, please do accept our request. Sure, sir. Thank It will you. be Thank you my very pleasure much. to be part Thank you, of ma'am. it. Thank you so much. Thank you. Thank you on behalf of Matunga Study Circle. Thank you very much. Thank you so much. And thanks to all the participants also for their active participation and for their kind words. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye.